رمضان ہے رمضان، اللہ کا احسان، رمضان ہے رمضان، رمضان ہے رمضان، اللہ کا احسان، رمضان ہے رمضان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان اللہ کا احسان۔ میں ہوں تنزیلہ مظہر، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جہاں پہ رمضان کی بہت بڑی بڑی میراتھن ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ نیوز چینل ہونے کی حیثیت سے، ہونے کے ناطے سے ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ معاشرے کے وہ ایشوز جو شاید ہم کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ایشوز آپ کے سامنے رکھیں، کچھ ایسے چہروں کے ساتھ جن کو آپ مختلف رول ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسکرینز پہ بھی دیکھتے ہیں، ان کی جو عام زندگی ہے اور وہ کس طرح سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک سافٹ چہرہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی میرے ساتھ بہت ہی زبردست سے مہمان ہیں، اور رمضان ہمیں جن چیزوں کی یاد دہانی کراتا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو رمضان کی تربیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے بہتر کر سکتے ہیں، انہی ایشوز پہ بات کریں گے۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت جانا پہچانا چہرہ ہیں۔ آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، بہت اچھی اینکر ہیں، بہت اچھی صحافی ہیں، بہت اچھی ماں ہیں۔ آسمہ بہت شکریہ آنے کے لیے۔ گلزار شاہ صاحب، آج ہم نے سوچا کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کافی بڑی اس دفعہ کیمپین کر رہے ہیں، آپ کے رمضان میں جو گھر کے اخراجات ہیں، بجٹ ہے، اس پہ کچھ بچت کا ایلیمنٹ لانے کے لیے، تو گلزار شاہ صاحب ایم ڈی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے، تو جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں کچھ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان کی زندگی اور ان کے رمضان کے حوالے سے بھی۔ بابر گورسی ہمارے ساتھی ہیں، پی ٹی وی کی اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، تو بابر کو بھی ہم نے آج کہا کہ افطاری ہمارے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ بابر، آپ تشریف لائے۔ حافظ محمد رمضان صاحب، ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ ہم نعت خواں جو نیا ٹیلنٹ ہے، نئی آواز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز اور محبت بھی عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسٹیٹ چینل کی اسکرین سے۔ آسمہ، سب سے پہلے بہت شکریہ۔ رمضان جو ہے وہ بہت فیسٹیوٹی ہے، بہت سارے چینلز پہ بہت ساری ٹرانسمیشنز، بہت سارا ہلا گلا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو فلاسفی ہے وہ کہیں ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے ریالٹی میں؟ وہ ہم ایز سوسائٹی جو ہمارا ٹالرنس لیول ہے وہ بہتر ہوا ہے، کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ نہیں، بہت بہت شکریہ تنزیلہ، آپ نے بلایا ہے اتنی بابرکت محفل کے اندر اور اتنے بابرکت مہینے کے اندر۔ جتنا رمضان جتنا ہمیں سکھاتا ہے، یعنی ایک پورا وے آف لائف اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ بتاتا ہے اس ایک مہینے میں، کہ انسان کی زندگی ایک نظم اور ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اتنے وقت پہ آپ نے کھانا ہے، اتنے وقت پہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، اور وہ سارا اس کا ایک پورا مقصد ہے، کیونکہ جو بھی مذہب ہوتا ہے اس کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہوتی ہے، اور جب تک وہ واضح نہیں ہوتی اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، جب تک کہ آپ اس کا مطلب وہ جو اپنی جو ذات ہے اس کی زکوٰۃ دیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے جو کہ روزے کی صورت میں ہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ جو دوسرے جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں عام حالات میں، ان کا کیا احساس؟ اور جہاں تک سوسائٹی کے اوپر اس کو لانے کی بات ہے، کلی قصور میں ایک لڑکی جلا دی گئی، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے لاہور میں پرسوں ایک واقعہ ہوا۔ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہوئے ہیں اور رمضان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، تو ٹالرنس تو ہماری سوسائٹی کے اندر بالکل ناپید ہوگی، اور خاص کر کے عورتوں کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اس ایک مہینے کے اندر ہر سال ہم ایک کانسیپٹ لے کے آتے ہیں، مختلف چینلز جو ہیں وہ ایک کانسیپٹ کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اس کانسیپٹ کو زیادہ پروموٹ کیا جائے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عورتوں کا کتنا احترام دیتا ہے، وہ عورتوں کو کتنا زندگی کا اہم ترین حصہ بناتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ماں کا، بہن کا، ٹریفک پہ کوئی نہیں رک رہا، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، دونوں چیزیں۔ تو یہ جو پے در پے واقعات ہوئے ہیں نا جس میں عورتوں کو جلانے کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فوکس رہ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں ٹالرنس جو کہ اسی کا ایک بڑا پہلو ہے ہر لحاظ سے معاشرے کے اندر، کہ آپ نے کس طرح سے ٹالریٹ کرنا ہے، ایک ٹالرنٹ کے طور پہ کس طرح سے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، وہ میرا خیال ہے اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ ہمیں ناپید نظر آ رہی ہے، جتنی ٹرانسمیشنز ہیں اس میں مختلف گلگوپاڑے بھی ہیں، معاف کیجیے گا، اس میں کھیل کود بھی ہیں، ہونے چاہیے، کسی حد تک ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے یا جو اصل مقصد ہے رمضان کا، وہ اگر ٹالرنس کے حساب سے اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو شاید اتنی لمبی ایکسرسائز کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ گلزار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے
हमारा मुआशरा जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है? यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो कुछ नज़्म ज़ब्त भी सिखा रहे हैं, कुछ रूटीन बेहतर कर रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज अ पर्सन, रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है जिसमें आपने अपनी क्लिनजिंग करनी होती है, जिस्म की तज़किया भी नफ्स करना और होता है। रूह की भी। तज़किया नफ्स करना होता है और हम सब करते हैं। चलें, एक साल के साइकिल में ही सही आप एक नए सिरे से इब्तिदा करते हैं, नई शुरुआत करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। उस तैयारी में एक बुनियादी एलिमेंट आ जाता है, चूँकि हम सारे ही पूरी कौम एक बड़ी रमज़ान शरीफ से पहले एक मोड में चले जाते हैं, जिसे फेस्टिविटी भी कह सकते हैं, एक तैयारी भी कह सकते हैं, एक एंटिसिपेशन भी कह सकते हैं। और उस एंटिसिपेशन में एक एलिमेंट शामिल हो जाता है कि घरेलू अशिया, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, खाने पीने की अशिया, उनका क्या रमज़ान शरीफ में कैसा माहौल बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाय द वे। और ये इत्तेफाक से दो लोग चल पड़ते हैं। एक वो लोग जिन्होंने रमज़ान को एक मौका जान के, अपॉर्चुनिटी जान के उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है, और एक दूसरी साइड होती है जो उसके बारे में ख़बरदार भी करती है माशरे को, जिसमें मीडिया भी शामिल है। हाँ, और कुछ लोग कुछ स्टेप्स भी ऐसे लेते हैं कि कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। जी हाँ, जो गरीब है वो भी इस महीने में वो तमाम एहतमाम कर सके, जो अब हमारी ट्रेडिशन बन गया, हमारे कल्चर का हिस्सा बन जी गया। हाँ, और हुकूमत की कोशिश ये होती है कि जो मुनाफाखोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसका कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए। और काफ़ी सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक तरीका यूटिलिटी स्टोर्स है। यूटिलिटी स्टोर्स मुख्तसरन रमज़ान शरीफ के लिए, रमज़ान शरीफ की इब्तिदा से ही दो काम करता है। एक ये कि इसका 5500 स्टोर्स का जो नेटवर्क है, वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी वाफिर हों और इतनी सस्ती हों कि किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर कोई मुनाफा नज़र ना आए, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ आप वो बैलेंस एक प्रोवाइड बैलेंस, करने की कोशिश जी, करें। अच्छा, मैं बाकी स्टेप्स भी आपसे पूछूंगी, ज़ाहिर है हम इस पे भी बात करते रहेंगे। बाबर, हम लोग कितना अवेयर कर पाए हैं? हम इतनी सारी बातें करते हैं, हमारा मुआशरा इतनी सारी बुराइयों का शिकार है, हम उन तमाम जब बुराइयों की तरफ देखते हैं तो मीडिया ने, आपको लगता है, वो किरदार निभाया जितनी ज़रूरत थी मीडिया को किरदार निभाने की? तंजीला, अगर सच्ची बात करें तो बिल्कुल भी नहीं किया। अगर जिस तरह आसमा साहिबा ने कहा है कि अगर आप उनके गुल कपाड़े देखें, उनकी ट्रांसमिशंस देखें, ऐसे लोगों को भी उन्होंने ट्रांसमिशन में बिठा दिया। अनफॉर्चुनेटली मज़हब के जो मूवीज़ में भी काम करते हैं, मतलब ऐसी मॉडलिंग भी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मतलब मज़हब कोई ऐसे शख्सियत को बिठा रहे हैं जो मतलब ठीक करे। दूसरी जो आप जिस तरह ये कर रहे थे, एमटी साहब बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में क्या होता है कि जब उनका कोई त्यौहार आता है तो आप देखती हैं कि वहाँ पे डिस्काउंट दे दिया जाता है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती कर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी रमज़ान का महीना आता है तो चीज़ें जो हैं महंगी कर दी जाती हैं। हालांकि हुकूमत उसको सस्ती करती है, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर की हद तक। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं, मतलब आम स्टोर्स पे, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर केजी थी, वो आपको 150 या 200 में मिलती है। मीडिया ने ये नहीं है कि बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी है। जब से हमारा जो टेली मीडिया आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, उससे अवेयरनेस बहुत हुई है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी जो है एक गांव में बैठा है तो वो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, वो भी अपनी राय भेज सकता है। मतलब इतने टीवी चैनल्स हैं कि मीडिया का किरदार आप कह सकते रहे हैं हैं कि कुछ हद तक निभाया है। लेकिन निभाया। आसमा, ये हम अक्सर ये सोचती हूँ कि जब हम गुफ्तगू करते हैं मसाइल के हवाले से, तो हमने ब्रैकेट कर लिया है कि जितने मसले हैं, हम जितने इश्यूज़ में उलझे हुए हैं मुआशरे में, इसका जिम्मेदार ये बस कुछ हमने ब्रैकेट कर ली चीज़ें। हम मुआशरे के तौर पे मिनहासुल कौम, हमारा जो एक रवैया है, जो रवाज है, वो उस मिजाज को भी आप ब्लेम करती हैं, उसको हमें किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई जाके कोई हुक्मरान या कोई भी बड़ा ओहदेदार तो किसी को, दुकानदार को, या किसी मोहल्ले में एक दूर दराज दुकानदार को जाके ये तो नहीं कहेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दो, डबल कीमत कर दो, गंदा फ्रूट जो बिल्कुल क्वालिटी वाला नहीं होता, नाकिस चीज़ें वो बेच रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो हम खुद क्या करते हैं? देखिए, यही मीडिया का काम है कि अवेयर करें, उनको बाखबर करें कि उनके हुकूक क्या है, और मतलब फ़राइज़ ये क्या है। कंज्यूमर के जो हक है वो क्या है, और उसकी जो प्राइस है वो नरखनामा चेक करें। मैं आज सुबह ही बल्कि यहाँ आना था तो सुबह मैं
जुम्मा बाज़ार का चक्कर लगा के आई हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ रेगुलरली। तो 20 रुपए किलो टमाटर था और खीरा जो है वो 40 रुपए था। इस तरह मतलब उसमें थोड़ी सी कमी भी वाकई हुई। पिछले हफ्ते ज़्यादा था, रमज़ान से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा, एक हफ्ता पहले चीज़ें ऊपर चली गई थी। तो उसमें अगर हम उनसे पूछें कि नर्खनामा कहाँ है, कि आप दिखाइए कि सरकार ने क्या रेट रखा है और आप इतनी रेट पे क्यों बेच रहे हैं, और अगर हमें खुद भी पता हो, जैसे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहे होते हैं रेट्स वगैरह, और हमें पता हो और उससे ज़्यादा दाम, तो आप शोर मचाएं, उसको अपना प्रोटेस्ट, अपना हक रिकॉर्ड समझ के करवाएं कि भाई ये आपका हक है कि आप उनको बताएं और हाँ, और सेटिस्फाई ये करें बात कि ये क्या है 5 क्या या नहीं है। 10 रुपए की नहीं, जो आसमा कह रही है ना, अगर 20 का रेट है सरकार की जानिब से किसी चीज का और वो आपसे 22 भी ले रहे हैं, हाँ, in fact। 23-22 ले रहे हैं, तो वो हाँ। देखें कि वो जब आप उसको सारे को कलेक्टिव देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो हाँ। आपका तो जो बुनियादी हक है वो बेशक आपके violate 2 हो रहा है। रुपए से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसको पता चल जाएगा कि लोगों को पता है, इसलिए मुझे अपना, यानी उसके ऊपर एक चेक आ जाएगा। ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? वो जो हमारा एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका, उनकी, क्योंकि वो सफेद पोश होते हैं ना, उनको लगता है 2 रुपए के लिए यहाँ पे क्या झगड़ा करना। वो तो 2 रुपए का झगड़ा छोड़ के आ जाते हैं। जो गरीब है, जिसका 2 रुपए से बजट वाकई में रोजाना अगर 2 रुपए से एक्स्ट्रा देने हो या 3 रुपए, तो वो तो बेचारा। देखिए रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन अब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोग जाते हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी उसके ऊपर लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा। तो अगर उनको ये पता है कि ये चीज़ें क्वालिटी वाइज अच्छी हैं और उसके ऊपर पैसे जो हैं उनको मुनासिब, वाकई मुनासिब लग रहे हैं, तो वो तो जाएंगे। अदरवाइज बाजार इतनी बड़ी मार्केट है, लोग नहीं जाएंगे। ओपन तो मार्केट है। क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन जैसे एमडी साहब ने कहा कि जी हम जाके यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चेक रखते हैं कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, और लोगों को वाकई सस्ती चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है। मसलन अगर बेसन 20 रुपए किलो है, तो उस 20 रुपए के अंदर क्या आपको मिल रहा है सही मानों में सही वाला, या पुराना बेसन उठा के जो स्टोर था वो आके यूटिलिटी स्टोर पे रखा गया है। तो ये क्या होता है? रेगुलेटर हाँ। का भी काम है कि वो रेगुलेट करे, और जो सारिफ है उसका भी काम है कि वो चेक रखे कि वाकई जो चीज़ उसको वो ले रहा है वो जितने दाम rules दे के रहा है, मुताबिक rules के है या मुताबिक नहीं है, मिल रही है साफ या नहीं। सुथरी है या नहीं है, उसका हक है कि गुलजार वो साहब करे। कैसे इंश्योर करते हैं? जी, इस दफ़ा हमारा सेंट्रल थीम 2 चीज़ों पे है। एक तो अपने बारे में परसेप्शन तोड़ना, यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में, जिस तरह अभी कि फरमा चीजें रही थी। सस्ती और नाकस हैं। सस्ती और नाकिस दोनों, सस्ती भी का भी एक चैलेंज था हमारे ऊपर कि शायद सस्ती भी नहीं है और शायद अच्छा। नाकिस भी हैं। अच्छा अच्छा। इसका तोड़ और हकीकत में तोड़, ये हम परसेप्शन तोड़ना चाह रहे हैं। दूसरा, यूटिलिटी स्टोर्स को एक नया कॉन्फिडेंस दे के और एक बिल्कुल पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं। हमारा पूरा जोर लगा है, 2 महीने हमने तैयारी की है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब का हुक्म अप्रैल में हमें मिला, उसमें हमने उसी वक्त से एक मार्केट में खड़े हो गए मॉडरेटर के तौर पे। सिर्फ घी और ऑयल की मद में हमने कंज्यूमर को खड़े रहने से, अपनी कीमत ठीक रखने से अभी तक 4.2 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। 4.2 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंच चुका है। क्योंकि अगर यूटिलिटी स्टोर अपनी कीमत बढ़ाता, जो कि बढ़ाने का वक्त आ गया था अप्रैल में, तो बाकी मार्केट बढ़ाने को तैयार बैठी हुई थी। अच्छा। तो वो सिर्फ 10 रुपए के रेजिस्टेंस से 4.2 अरब रुपए का फ़ायदा आवाम को अभी तक रमज़ान शरीफ से पहले हो चुका। 1 2 हमने इन 2 महीनों में इस परसेप्शन का हमें मुकम्मल अंदाज़ा है। एक हमें याद पता है कि काफ़ी अरसे से हम लाइमलाइट में भी नहीं है, एक छुप के एक पीछे खड़े हुए स्टोर हैं जो अपने आप को छुपा के रख रहा है। हमने कॉन्फिडेंटली अपने आप को लॉन्च किया है। आइए हमें देखिए, अब ए ग्रेड क्वालिटी है। 2 महीनों में हमने जो पुरानी अशिया थी, जो ख़राब अशिया थी, वो हमने उठवा के सर्टिफिकेट्स लिए हैं स्टोर इंचार्जेस से, अच्छा। हमारे रीजनल मैनेजर से। उसके बाद एक मैं आपको बड़ी एक और बात करूंगा, पहले क्वालिटी का, कमोडिटीज़ का बता दूं। हम अब रियल टाइम में कनेक्टेड हैं अपने जोनल मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से, एक पूरा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे जैसे ही प्रोक्योरमेंट का कोई सौदा फाइनल हुआ, जो कि अगेन हमने बहुत ओपनली ट्रांसपेरेंटली किया है, बड़ा चैलेंज के साथ कि आके देख लें हमने रेट ठीक लिया है कि नहीं लिया। अच्छा। जैसे यहाँ से सैंपल लॉन्च हुआ, तमाम जोनल मैनेजर्स, उनको ये है कि अपनी अपनी जगह जहाँ आपको गलत चीज़ प्रोवाइड हो वापस कर दें। इसका हमने मई में इतनी ज़्यादा ये कार्रवाई की, लोगों के वापस ट्रकों के ट्रक वापस उठवाए कि किसी की जरूरत नहीं हुई गलत चीज़ हमारे स्टेशन पे उसके बाद पहुंचाने की। चलिए, तो अच्छी बात। अब आपको इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं और पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से हम ये मीडिया के सामने बैठ रहे हैं कि क्वालिटी का चैलेंज भी इस दफ़ा हमारा साथ है। अब और हमारी दालें, हमारी चने की दाल आप जाके देखिए मार्केट में, वो कोरी दाल 140-45 की है जो आपको 120 रुपये में मिलेगी। उसके बाद इसी तरह बाकी दालें हैं, हमारा चावल है, इस वक्त वापस हम अपनी खोई हुई साख वापस लेके आ चुके हैं। चलिए, ये तो ज़बरदस्त बात। अगली बात ये है कि अब ये जो कमोडिटीज़ हैं सिर्फ यहाँ तक न रही है, हमारे पास 2500 आइटम्स और हैं, ब्रांडेड आइटम्स,
जो कि आप बड़े बड़े नामों के सुनते हैं, जिनका आपको पता है क्वालिटी का एतमाद है। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो बिल्कुल भी नहीं नाम लेना। धोने वाले कप ये चले आज हम रमजान की बात कर रहे हैं ना, ये जो आपने क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स बेसिकली अब यहाँ पे मार्केट कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं, क्वालिटी में भी, प्राइस में भी और हर चीज में। ये तो और सिर्फ कमोडिटीज की नहीं, हर चीज की प्राइस में। ये तो अच्छी बात। 1300 आइटम्स हम वैसे 10% कम है। आप जाके देखिए कपड़े धोने वाला जो पाउडर होता है, साबुन है, शैम्पूज हैं, वो हमने चिट्टे लगा के दिखाई हैं। चले मैं और आसमा जरूर चक्कर लगाएंगे। हाँ, जुम्मा बाजार के अलावा हम यूटिलिटी स्टोर्स भी दौरा करने जाएंगे। आसमा ये बताओ, रमजान में काम, अब आजकल तो जाहिर है आप प्रोग्राम नहीं कर रही हो, लेकिन वैसे रमजान में एक्टिविटीज क्या होती हैं बच्चों के साथ, कैसा गुजरता है रमजान? पहला रमज़ान है, मतलब मेरा बेटा अभी 7 साल का होने वाला है, तो उसका पहला रोज़ा रखना है उसने अभी। अच्छा। तो प्लान किया उसने, तो पहली दफ़ा वो करेगा। लेकिन ये कि चूँकि मुझे थोड़े से दिन मिले हैं ऑफ, नया प्रोग्राम मेरा जल्दी शुरू होगा ईद के बाद, तो वो मुझे जो वक्त मिल रहा है वो मैं पूरा कुकिंग वगैरह के ऊपर लगा रही हूँ। तो शाम को मैं खुद ही किचन में सब चीज़ें, आज बल्कि मुझे नहीं पता क्या बना होगा, तो जितने भी जो मेरे घर में मेरे साथ हेल्प करवाते हैं वो भी और सारे, तो हम मिल के अपनी अफ्तार बनाते हैं सबकी। और 2-3 दिन जो पिछले थे उसी में गुजरे हैं पूरे। तो मेन्यू भी बनाते हैं कि आज क्या क्या बनना अच्छा है, पकाती हैं, क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं अच्छा बातें अब अच्छी बनाती मुझे हैं, असल में और क्या अच्छा बनाती हैं? मुझे हर दफ़ा हेल्प लेनी पड़ती है किसी से अच्छा बनाने के लिए कि क्या क्या बनेगा। लेकिन जब वो बन जाता है तो अच्छा बनता है। मतलब बिरयानी भी बना लेती हूँ, कौरमा भी कर लेती हूँ, सब चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन मुझे हेल्प लेनी पड़ती है या इंटरनेट से। वो मैं किचन में लगा देती हूँ अपना आईपैड और उस पर देखती रहती हूँ साथ साथ और सुनती रहती हूँ। टेक्नोलॉजी ने क्या क्या डायमेंशन लाइफ की जो है ना, बहुत हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मतलब पिज़्ज़ा बच्चों को चाहिए तो वो भी खुद बना के मैंने पिछले दिनों उनको एक्सपेरिमेंट कराया, सो सक्सेसफुल था, वो बच्चों को पसंद आया। अब ये बातें तो सुन के यकीन नहीं आ सकता जब तक आ जाके ट्राई नहीं। रोज़ा अफ्तार करने का वक्त हो रहा है तो और क्या बताऊँ मैं। तो बाबर आप क्या कुछ कभी पकाने की कोशिश की, कुछ कभी कुकिंग? कभी भी मौका भी नहीं मिला और ना मैं कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंकली सारी ज़िंदगी बिल्कुल बैचलर की तरह गुजारी और बाहर ही जो अफ्तारी भी जो है वो बाहर करनी है। और होटलिंग करते